بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں ہم ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، وہ ہے مسلم معاشرے میں شراب نوشی کی لعنت۔ اس جانب آپ سبھی کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ پورا مسلم سماج شراب نوشی کی لعنت کا شکار ہے۔ مختلف قسم کی شراب نوشی اور اس کے نت نئے نام کے ساتھ اس کا رواج ہے۔ کوئی ایسا مسلم محلہ نہیں جس میں کوئی نہ کوئی نوجوان، بوڑھا، عورت، مرد شراب نوشی کا عادی نہ ہو۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم مشہور محدث علامہ جمال الدین ابو الفرج ابن الجوزی المتوفی 508 ہجری کی مشہور زمانہ کتاب بحر الدموع سے شراب نوشی کے 10 بڑے نقصانات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب من الخمر شربۃ لم تقبل منہ صلاۃ 7 ایام ولم يقبل منہ صیام۔ مسند احمد، سنن نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم۔ یعنی جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیا، اس کی 7 روز کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور نہ اس کے روزے قبول کیے جائیں گے۔ اسی طرح مشہور حدیث شریف کے اندر ہے کہ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سروں کے اوپر پرندوں کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ شراب کے نشے سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ ایمان واپس آتا ہے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں بحر الدموع سے علامہ ابن جوزی کی تصنیف بحر الدموع سے شراب کے 10 نقصانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ شراب پینے سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے اور مذاق کا باعث بن جاتا ہے۔ نمبر 2، شراب سے مال ضائع اور برباد ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شراب شرابی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں اپنے بیوی کے زیورات تک بیچ دیتے ہیں، زمین جائیداد بھی بیچ دیتے ہیں اور اسے شراب کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارینا فی القمر فإنہا ملتفۃ للمال ومذہبۃ للعقل۔ سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 3670، سنن الترمذی، حدیث نمبر 3049، مستدرک حاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 143۔ اے اللہ، ہمیں شراب کی برائیاں واضح کر دے، بتا دے، کیونکہ یہ مال کو برباد اور عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہم ارینا فی الخمر فإنہا ملتفۃ للمال ومذہبۃ للعقل۔ اے اللہ، ہمیں شراب کی برائیوں کو جتلا دے، واضح کر دے، کیونکہ یہ مال کو برباد اور عقل کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ شراب کا تیسرا نقصان، یہ عداوت اور بغض کو بھڑکاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ البغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 91۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پھیلا دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ اے مسلمانوں، تم اس سے باز آؤ گے؟
یہ आयत सुनने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह, ऐ मेरे रब मैं बास आ गया, ऐ मेरे रब मैं बास आ गया। इसलिए जब ये आयत पढ़ी जाए तो वो लोग जो शराब के अंदर, जुए के नशे के अंदर, जुए के अंदर मुब्तला हों, उनको भी ऐसे ही कहना चाहिए कि अल्लाह हमने तौबा किया, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। शराब का चौथा नुकसान लज़्ज़त ताम और लज़्ज़त गुफ्तगू से महरूम हो जाता है। चुनांचे आपने देखा होगा जो लोग शराब के आदी होते हैं उनको घर का खाना या इस तरह का खाना अच्छा नहीं मालूम होता और उनकी गुफ्तगू की लज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। अरे तुरे से बात करते हैं और गाली गलूज से बात करते हैं, वो किसी की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते। पांचवा नुकसान उसका ये है कि उसकी बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती है, वह हमेशा बीवी से भी ज़िना करता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शराबी लोग अक्सर तलाक़ वगैरह की बातें करते रहते हैं, बातों बातों में तलाक़ देते हैं और उसका शऊर भी नहीं होता। इस तरह उसकी बीवी उससे जुदा हो जाती है और उससे हमेशा ज़िना का इर्तिकाब करता रहता है। बाज़ सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से भी रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मन अनकहा करीमतहु शारिबल खमरी फ़क़द साक़हु लिज़्ज़िना। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 1760, नसई 315 और 316। जिसने अपनी बेटी का निकाह किसी शराबी से कर दिया तो गोया कि उसने ज़िना के लिए उसको अपने घर से रवाना कर दिया, ज़िना के लिए रवाना कर दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। छठा नुकसान ये है कि शराब नोशी हर बुराई की चाबी और हर बुराई की जड़ है, जो शराबी को हर किस्म के गुनाह में मुलविस कर देती है, हर किस्म के गुनाह में। चुनांचे ज़िना, कत्ल, गारत गरी और लूट मार और बेशुमार गुनाह शराबी से सरजद होते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, शराब से बचो, ये सब गंदे कामों की जड़ है, गंदे कामों की जड़ है। ये नसई शरीफ की रवायत है। सातवां नुकसान ये है कि शराब गंदी जगहों और गंदी मजलिसों में दाखिल होने के लिए उसे मजबूर करती है। चुनांचे आपने देखा होगा कि शराब पीने वाला गंदी मजलिसों के अंदर, ज़िना की मजलिसों के अंदर, बेहयाई की मजलिसों के अंदर, गाली गलूज की मजलिसों के अंदर शरीक होता है और यानी उसकी गंदगी से फ़रिश्ते भी दूर होते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों को शराब की बदबू से ईज़ा पहुँचती है। आठवां नुकसान शराब का ये है कि शराब खोर अपने जिस्म को 80 कोड़ों के लिए तैयार कर लेता है, यानी मुस्तहिक हो जाता है। इस्लामी सज़ा ये है कि अगर कोई शराब पिया और शराब पीते हुए पकड़ा गया, उसके मुंह से अभी बदबू आ रही है, तो उसके ऊपर हद शरई जारी की जाएगी और 80 कोड़े लगाए जाएंगे। तो गोया कि शराब पीने वाला अपने आप को हद के लिए मुस्तहिक बना लेता है। ये दुनियावी नुकसान है। नौवां नुकसान ये है कि ये शराबी के ऊपर आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, यानी आसमान से अल्लाह की जानिब से रोज़ी और अल्लाह की रहमत और इनायत बंद हो जाती है। 40 रोज़ तक उसका कोई अमल ऊपर नहीं जाता है और न उसकी कोई दुआ कबूल की जाती है। 10वां और आखिरी नुकसान अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ज़िक्र फरमाया कि शराबी अपने आप को ख़तरे में डाल लेता है, यानी उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है, अपने दीन को ख़तरे में डाल लेता है, उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। और ख़तरा इस बात का है कि बग़ैर ईमान के उसकी मौत आ जाए, यानी उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। जैसा कि शुरू में मैंने हदीस पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा शरिबा शारिबु ला यशरबु शारिबुल ख़मरा, जब शराब पीने वाला शराब पीता है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे एक इबरतनाक वाक़या ज़िक्र किया है कि एक आदमी कहता है कि मैंने एक इंसान को मौत की हालत में देखा, उसको कहा जाता था कि कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो कह रहा था कि और पिलाओ और पिलाओ।
बहरहाल ये है तो शराब की नहूसत की कलिमा भी नसीब नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शराबी आदमी मर जाए तो उसको दफन कर दो और मुझे इस बात का पाबंद कर दो कि मैं उसकी कब्र को खोदूं। अगर खोदने के बाद उस शराबी का चेहरा क़िबला से मुड़ा हुआ ना हो तो मेरी गर्दन उड़ा देना। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी शराब पीने वाले की लाश जब कब्र में रखी जाती है तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ से फेर दिया जाता है, जो इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसके ऊपर क़यामत में रहम नहीं करेंगे। ये तो उसकी दुनिया की सज़ा हो गई, और आखिरत की सज़ा तो बेशुमार है। उसको जलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, ज़क़ूम खिलाया जाएगा, दोज़खियों का दोज़ख में जो पीप और खून वगैरह निकलेगा वो निचोड़ करके शराबी को पिलाया जाएगा, और उसको कई किस्म किस्म के अज़ाब दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इस लानत से और पूरे माशरे को इस लानत से महफूज रखे। आज की मजलिस के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।